जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे सीतं करोति वाचालं मधुरं देवी यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं Hare Krishna. So today we are going to discuss from the second verse of Nectar of Instruction. So we were in the second verse of Nectar of Instruction. So discuss one aspect of that verse. So we'll repeat the sloka. You can repeat after me. अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह धनसंगश्च लौलं च भक्तिर्विनश्यति. Anybody can read the translation? अनुवाद करो. भक्ति कैसे विनष्ट हो सकता है, भक्ति कैसे नष्ट हो सकता है. NY the first verse teaches us that how we should become the servant of Krishna, not the servant of senses. So my conditioned soul is servant of the senses, and Bhagavad Gita teaches that we should be servant of instead of servant of our own senses. So that is called bhakti. Now second verse explains that what is the unfavorable activities of bhakti or what can destroy bhakti. Bhakti को कौन नष्ट कर सकता है? So read the translation. Once devotional service is required when it becomes to integral in the following 6 activities. First, eating more than necessary or collecting more funds than required. Second, over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. Third, talking unnecessarily about mundane subject matter. Fourth, practicing the spiritual rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulation of the scripture and working independently or whimsically. Fifth, associating with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness. And sixth, being greedy for mundane achievements. This sixth activity spoil the bhakti. So in our previous class we have discussed about atyahar, eating more than necessary or collecting funds more than necessary. So when you eat more than necessary, then it agitates other senses, tongue, belly and genitals. When the urges of tongue increases, we eat more, then the urges of belly and genitals also increases. Therefore, first of all, we have to control the tongue. How we can control the tongue? তার মধ্যে জিহ্বা অতি লোভময় সুদুর্মতি কাকে যেতা কঠিন সংসার. Very difficult to control or conquer the tongue. But Krishna baro dayamay paribare jiva jay sa prasad anna dila bhai.
से अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य. Tongue have two activities. One is eating, another is speaking. So instead of eating nonsense, one cannot control his tongue by eating non-veg food. It will never happen. Rest of your life. That's why one has to eat prasad. Even just becoming pure vegetarian is not sufficient. Because a cow is also vegetarian. And monkey is also vegetarian. So our goal is not vegetarian. Our goal is vegetarian. Our goal is to become devotee. And therefore Krishna says, Patram pushpam phalam toyam yume bhakta prajachati. Tadam bhakta paritam ashnami. So offer fruits, vegetables, leaves, water, Krishna. And take it as, honor it as prasad. And when you eat prasad, take prasad, then the tongue is purified. So, by eating prasad, we can conquer the tongue. And when tongue is controlled or subdued, then belly and genitals are subdued. So therefore, in the path of spiritual progress, prasad have very vital role. In the path of spiritual progress, the prasad have very vital role. You may think that, oh, I'll stay in mess and chant Hare Krishna, I'll progress. No, but Shastra does not say like that. Shastra says that you have to take prasad also. Without taking prasad, you can't chant properly. Tendency is to practice Krishna consciousness independently. Tendency is that I do not like to stay in the association of devotees. I want to separately practice Krishna consciousness. That is not bhakti yoga. Yesterday also I was hearing a lecture. That lecture, Maharaj was saying that one can't practice advance in Krishna consciousness independently. One has to submit to advanced devotee. One has to associate with other devotees. And by the association of devotees, by the mercy and blessings of Guru, one will advance in Krishna consciousness. So eating or chanting Hare Krishna, one cannot chant Hare Krishna properly unless he associates with the devotees, unless he hears from the devotees, unless he chant Hare Krishna, unless he take Krishna Prasad. Understand? It is very important. So, when you are practicing Krishna consciousness, we should accept the process fully. One has to accept the process fully or solely. पूरा पूरी accept करना चाहिए. अगर partially accept करेंगे, that means you are not fully surrendered. Partially accept करेंगे, partially follow करेंगे, तो आपको partial progress होगा. You will not experience the freedom from the material existence. You will not experience the freedom from lust, anger, greed, or Rajo and Tamagun. The Rajo and Tamagun, they are controlling the whole world.
Karanam guna sangasya sada sajjanma jonishu. People are thinking they are independent, but actually they are under the law of material nature. Nobody is independent. Only Krishna is independent, and person who surrender to Krishna and Krishna's representative, they are independent. Muktanam upi siddhyanam narayana parayana. जो नारायण परा भक्त है वो मुक्त है. मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायणा सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने. कोटि मुनियों में एक जन है जो नारायण परा भक्त है. So here Srila Prabhupada has given us opportunity to practice yoga. That is Narayana Para, most rare, topmost. There is three type of spiritual practitioner: Karmi, Jnani, and Bhakta. Krishna himself is saying in Bhagavad Gita, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते जो मां समे युक्ततमो मत. श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करते, मेरा भक्ति करते हैं, समय युक्ततमो मत, वो मेरे से जो युक्त है उससे तमा, उससे सबसे श्रेष्ठ है. भक्ता माम अभिजानाति यावान् यस्यास्मि तत्ततः. भक्त ही केवल मेरे को जान सकता है, जिस प्रकार मैं हूं उसी प्रकार जान सकता है. So therefore the devotees are topmost. So मुक्तानामपि सिद्ध्यानाम नारायण परायणा. जो मुक्ति के कामना कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति में कदाचित एक व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर पाता है, और ऐसे मुक्ति प्राप्त करने वालों व्यक्ति में एक जन कृष्ण भक्त है. चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद का वर्णन कर रहे हैं प्रयाग में. 84 लाख जीव जोनी है, उसमें 4 लाख मनुष्य हैं. मनुष्य में ज्यादातर लोग असभ्य हैं, कुछ लोग सभ्य हैं. सभ्य है उसमें ज्यादातर लोग कर्मी हैं. कर्मियों में कुछ लोग शास्त्र को मानते हैं, कुछ ज्यादातर लोग नहीं मानते हैं. जो शास्त्र को मानते हैं उस कर्मियों में कदाचित एक जन ज्ञानी है, और ऐसे बहुत ज्ञानियों में कदाचित एक जन मुक्ति प्राप्त करता है. और ऐसे मुक्ति प्राप्त करने वाले लोगों में एक कृष्ण भक्त. तो devotees are very, very rare. So without the blessings of the devotees, without associating with the devotees, without accepting the process solely and wholly, we can't advance in spiritual life. We can't experience the freedom from the clutches of the modes of material nature. Everybody under the clutches of material nature, except Krishna and Krishna and his devotees. They are fully surrendered. Narayana Parabhakta. They are independent. They are liberated. Like Lord Shiva, fully surrendered to Lord Krishna. And therefore he drank poison, no effect. He was liberated. He is the husband of Maya. So, pure devotees are liberated. Like Ambarish Maharaj, liberated.
So, Durvasa Muni cursed. He produced one demon. And the demon attacked Ambarish Maharaj. And Ambarish Maharaj surrendered to Krishna. And immediately Sudarshan chased the demon. And the demon was finished then chasing Durvasa Muni. Durvasa Muni was great yogi, but not devotee. He was running from one planet to another planet, another planet to another planet. He approached Brahma, Shiva. Nobody could save him. At the end he approached Vishnu. Kindly save me, your Sudarshan is chasing me. I can't save you. Well, Sudarshan is your weapon. You can stop him. Well, no, he will not hear me. I have already instructed him. Whenever my devotees are in danger, protect them. Then he said, but still you are independent, you can change your law now. The law is under your control. Then he says, I am not also independent. Durvasa was surprised. Supreme independent, he is not independent. Then he says, Aham bhakta paradhina asatantra ibadhijo sadhunam grasta hridayo bhaktir bhakta janapriya. This is the secret of spiritual progress. To be under the guidance of devotee. Bhaktir bhakta janapriya. I am famous as a devotee of my devotee. Aham bhakta paradhina. मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी मेरे भक्तों का पराधीन. The Supreme Lord, He is supreme, but His own free will, by His own free will, He accepts or He becomes subordinate. Like Lord Krishna is bound by Mother Yashoda. Krishna is Muktidata. Who can bind? Krishna's name is Mukunda. Who can bind Krishna? But he gets bound by his devotee. There is a contradiction. He is independent, but he gets bound by the love of his devotee. So thus, in the spiritual world, devotees are higher than the Supreme Lord. In this material world, everybody is trying to be supreme. But the spiritual world, the Supreme Lord, He is the servant of His devotee. And devotees are higher than the Supreme Lord. So therefore, the real bhakti person cannot understand unless he associates with the real devotee. Unless you associate, so Srimad Bhagavatam is nothing but the dealing with the Lord and His devotee. The different chapters, the different cantos, the great devotees, Prahlad Maharaj, Prithu Maharaj, Ambarish Maharaj, Dhruva Maharaj, Pandava, the Gopis, the great devotees, their pastimes are coming. So our tendency is to practice Krishna consciousness. Our tendency is to practice Krishna consciousness independently. And that's what we are struggling in Krishna consciousness. That's what we are not able to conquer the urges of the senses. We are not able to conquer the urges of the senses. Even by chanting Hare Krishna. Even by chanting Hare Krishna, we are not able to conquer the senses because submission has not taken place. We are thinking that I am directly surrendered to Krishna. No. We have to submit to a bona fide devotee. In parampara. And he is not saying that you serve me, though we are supposed to serve him because he is a representative of Krishna. Krishna saying, Acharyamam Vijaniha.
Don't consider Acharya is separate from me. नाम अर्थ बुद्ध सुए तो उनको मनुष्य बुद्धि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे प्रामाणिक भक्तों के आश्रय में हमें भक्ति करना चाहिए। आश्रय लइया भजे। और एक जगह में बोल रहे हमारे आचार्य, एकाकी अमर नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तने, তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে, ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাসে করুণা করি। समझ में आ रहा है? एकाकी अमर नाही पाए बल हरिनाम संकीर्तन। One can't chant Hare Krishna alone. That is the conclusion of scripture. Only Haridas Thakur can chant alone. Not you, me and all this. Those who are liberated, Paramahansa, they can chant alone. Narad Muni can chant alone. And he make others can chant. Without association of devotees, we actually can't practice Krishna consciousness. We actually can't follow the process. So therefore, when we come in the association of devotees, naturally other processes naturally take place. Taking prasad. So prasad has a very vital role in our spiritual path. Practically this movement has been spread by the power of prasad. Prabhupada was a very expert cook. Not just he was expert writer, expert speaker, but he was expert cook also. And used to cook very nice prasad. And people used to eat. People used to come just for eating. और ऐसे खाते खाते एक प्रभुपाद के समय में जो गुलाब जामुन बनाते थे प्रभुपाद जी, उसको कहा जाता था इस्कॉन बुलेट। जो खाया घायल हो गया। समझ में आया? और एक है संदेश का, उसका नाम है सिंपली वंडरफुल। उसका नाम हो गया। एक माता जी बनाती थी, हाँ, बहुत घंटों घंटों उसको ये करके क्या कहते हैं, उबाल के बहुत समझ देके प्रेम से बनाती थी। हाँ, एक माता जी प्रभुपाद जी की शिष्या थी। प्रभुपाद जी बोले, योर स्वीट इज सिंपली वंडरफुल। व्हाट स्वीट यू हैव मेड फॉर द लॉर्ड, it is simply wonderful. And from that day that Sandesh name became simply wonderful. अब मायापुर में जाइए, जो मंगल भोग में जो लगता है, हम लोग तो ऐसे नॉर्मली खरीद के खाते हैं, ठीक है, कॉमनली सबके लिए बनता है और भोग लग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन भगवान को जो डायरेक्ट भोग लगता है, ठीक है, मंगल भोग में मंगल आरती के बाद बाहर में सेल होता है, लाइन लग जाता है एकदम। डिवोटी लोगों को ही पता है केवल अलग अलग प्रकार के बर्फी, संदेश, केक। आप खाएंगे तो मतलब क्या है, जैसे वो अमूल दूध जैसे मुंह में लगा हुआ रहता है, वैसा उससे ज्यादा स्वादिष्ट है। तो जब पहली बार नारद मुनि को प्रसाद प्राप्त हुआ था, प्रसाद खा के वो नाचना शुरू कर दिया। प्रसाद पाके उनके हृदय में कृष्ण प्रेम इतना उत्पन्न हो गया, जागृत हो गया, वो कृष्ण प्रेम में नृत्य करने लगे। तो शिव जी को पता चला कि नारद मुनि नाच रहा है। बोले, क्या हुआ आपको? बोले, महाप्रसाद मिला। बोले, आपको मिला और मेरे को नहीं मिला? आप तो मेरे भाई हैं, मेरे को नहीं दिया। बोले, क्या करूं, थोड़ा सा ही मिला था।
बोले देखो देखो खुद हाथ में लगा हुआ, देखो 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 थोड़ा सा हाथ में लगा हुआ था। और वो शिव जी खाया और शिव जी खा के उनका भी सेम, और वो भी नृत्य करने लगे एकदम। शिव जी तो महाभागवत है, महान वैष्णव है, और प्रेम से नृत्य करने लगे और लग रहा है कि अभी प्रलय हो जाएगा। पार्वती जी ने कहा अभी तो प्रलय का टाइम नहीं हुआ, क्यों नृत्य कर रहे हैं? बोले ऐसे प्रश्न महाप्रसाद। पार्वती बहुत दुखी हो गए, देखिए मैं सहधर्मिणी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, आपको मिला तो आधा मेरे को मिलना चाहिए था। तो बोले मैं क्या करूं, इतना सही मिला था। तब पार्वती जी ने महाप्रसाद प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। फिर भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद किया कि मैं आगे जाके जगन्नाथपुरी में प्रकट होने वाला हूँ, और वहां पर जो भी मेरे को भोग लगेगा पहले आपके पास जाएगा प्रसाद के रूप में, और जब आप खा लोगे वो महाप्रसाद बन जाएगा, और फिर पूरे दुनिया में वितरण होगा। इस प्रकार महाप्रसाद आते हैं। पहले उपलब्ध नहीं था सबके लिए, पार्वती जी की कृपा से महाप्रसाद उपलब्ध है, और आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व भर में लोग महाप्रसाद खा रहे हैं। तो प्रसाद है वेरी वाइटल रोल। If you are not eating prasad which is not offered to the Lord, then we are eating sin. Gunjante te tu abham papa je pachanti atma karana। जो अपने कारण पाप करते हैं, भगवान को भोग लगाकर नहीं खाते, क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। चाहे व्यक्ति का पाप, जिसने बोया, जिसने खेती किया, जिसने उगाया, जिसने बाजार में लाया, जिसने बेचा, जिसने खरीदा, जिसने रसोई किया, सबका पाप खाना पड़ता है किनको? क्लास से 12 बजे समझ में आ रहा है? तो प्रसाद है वेरी वाइटल रोल। सो अत्याहार को आप स्टॉप कर सकते हैं बाय टेकिंग। ये सबसे बॉटम मतलब सबसे बड़ा क्या कहते हैं प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ईट प्रसाद। व्हेन यू ईट प्रसाद नेचुरली नॉन वेज एंड क्या कहते हैं इवन वेज फूड उसमें भी कट ऑफ हो जाता है। So naturally your tongue gets controlled. And then eat prasad which offered to the Lord, your tongue gets purified. So one activity is tongue is eating, another activity is speaking. So instead of speaking nonsense, we should speak Krishna Katha. क्या बोला? We should speak Krishna Katha. That is today's topic. Atyahara prayasasya prajalpa. We are going to discuss a little bit about prajalpa. So, atyahar means eating more than necessary and collecting more fun. Last time मैं बोल रहा था कैसे जिसके पास ज्यादा धन होता है या विशेष करके जरूरत से ज्यादा धन होता है, तो उससे क्या होता है? उनको भोग करने की इच्छा वर्धित होता है। इसलिए धन को अथवा लक्ष्मी को नारायण के सेवा में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? वो हमारा पतन का कारण बनेगा। जैसे कुबेर के पास बहुत धन था और कुबेर का बच्चे लोगों का क्या हुआ पता है ना आप लोगों को स्टोरी, नॉल कुबेर और मणिग्रीव का स्टोरी जो भगवान दामोदर लीला किया था। भगवान को जब बांध दिया तब भगवान ने वो जो उखल को दो पैर के बीच में लटका दिया था और फिर उसको खींचा और फिर जो अर्जुन वृक्ष है गिर पड़ा और दो देवता आ गए। तो उनको पूछा कि आपको कैसे लगता है कि आपको कुछ शाप प्राप्त हुआ था? तब बताते हो कि मैं नॉल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर का पुत्र था और हम लोग
हाँ, स्वर्ग के गंगा में अप्सराओं के साथ नग्न अवस्था में हाँ, क्रीड़ा कर रहे थे। और नारद मुनि जैसे महान ऋषि जा रहे थे, फिर भी हमारा कोई चेतना जागृत नहीं हुआ। स्वर्ग के ऐश्वर्य में जीने के कारण, कुबेर के पुत्र होने के कारण, बहुत धन संपत्ति प्राप्त करने के कारण क्या हुआ, हमारे हृदय में इंद्रियों भोग की इच्छा जागृत हो गई और हम लोग मदमत्त हो गए। और फिर नारद मुनि ने हमें अभिशाप दिया और उसके कारण हमें वृक्ष का जोनि प्राप्त हुआ। तो जो धन का सदुपयोग कर नहीं जानते हैं, जरूरत से ज्यादा धन कमाते हैं, वो इंद्रिय भोग में फंसेगा। और इंद्रिय भोग के कारण क्या होगा, अभी आप इंद्रिय भोग करोगे, अगले जीवन पशु जोनि या वृक्ष जोनि प्राप्त हो जाएगा। इस दुनिया में लोग इंद्रिय भोग के पीछे भाग रहे हैं। लोग सोचते हैं कौन देखने वाला है, हम तो इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन अगले जीवन में पशु के जोनि प्राप्त होगा या वृक्ष के जोनि प्राप्त होगा। तो इसलिए जरूरत से ज्यादा आहार करना, जरूरत से ज्यादा धन कमाना भक्ति को स्पॉइल करता है। जितना जरूरत है उतना कमाओ, तो फिर आपके पास टाइम और एनर्जी क्या होगा, बचेगा। उससे क्या कर सकते हैं, हाँ, भक्ति कर सकते हैं। तो हमारे राहुल प्रभु का भी जॉब लगा, अभी 11 तारीख उनका ज्वाइनिंग है। तो आपको या सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए, कितना मेहनत हम धन कमाने के लिए देंगे और कितना मेहनत हम परमार्थ, परमार्थ समझते हैं ना, भक्ति को कमाने के लिए देंगे, समझ रहे हैं। नहीं तो अत्याहार में फंसेंगे हम लोग। वो भी काम कर रहा है, मेरा कॉलीग मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहा है, 15 घंटा काम कर रहा है ऑफिस में, मेरा बॉस बोल रहा है और कर और कर। ये दुनिया इसी प्रकार से बना हुआ है। तो हमें जितना जरूरत है हमें मेहनत करना चाहिए धन प्राप्त करने के लिए। तो और हाँ, बाकी समय हमें बचाना चाहिए कृष्ण भक्ति करने के लिए। अगर हम उसमें सतर्क नहीं है तो अत्याहार में फंसेंगे। और दूसरा है प्रजल्प। प्रजल्प बहुत डेंजरस है। प्रजल्प मतलब मंडेन टॉक, यूजलेस टॉक। तो दिस मंडेन टॉक और यूजलेस टॉक इज द ग्रॉस मिसयूज ऑफ टाइम, इज द वेरी क्या कहते हैं, one of the vital category of misuse of time। समझ में आ रहा है? तो एक शास्त्र में श्लोक है, श्रोतोप्यादिनी राजेंद्र निनाम शांति सहस्रशः अपश्यतामात्म तत्तो गृहेषु गृहमेधिनाम। जो गृह मेधी है, जिनका जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति, वो क्या करते हैं, श्रोतोव्यादिनी राजेंद्र, सुनते हैं। क्या सुनते हैं, सहस्रशः, हजार लाखों टॉपिक्स के बारे में वो लोग चर्चा करते हैं। लेकिन ये सारे जो टॉपिक्स हैं अपश्यतामात्म तत्व, आत्म तत्व विहीन, आत्म साक्षात्कार का विहीन, आत्म साक्षात्कार के अलावा जो अलग अलग प्रकार की इंद्रियों भोग का टॉपिक है, पॉलिटिक्स, जैसे अभी हॉट टॉपिक चल रहा है पॉलिटिक्स, इनको मिलेगा कुर्सी। उसके बारे में फिर वर्ल्ड कप आ रहे हैं। तो इस दुनिया में
फुल है ईथर, ईथर इज फुल्ड विथ मैटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन एंड दैट मेक्स पीपल फॉरगेट हिज रिलेशनशिप विद द गॉड। सुबह उठ के लोग क्या करते हैं? न्यूज़पेपर देखते हैं। इसमें अनाप शनाप कहां पर किसने मर्डर किया है, कि किधर खून हो रहा है, कहां आग जल गया है, सब। अभी तो सोशल मीडिया में कहां पर किसके घर में क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं है उसके साथ, सब न्यूज चैनल में आ रहा है। इसके घर में वो चोरी हो गया है। अरे ये तो पहले भी होता था, अभी भी होता है। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को उतना उनको जानने की जरूरत नहीं था। समझ में आ रहा है? तो टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, क्रॉसवर्ड्स, लोग क्रॉसवर्ड सॉल्व करते हैं, पूरा समझता हूं, पूरा एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसमें। पबजी, टीवी, प्लेइंग कार्ड्स, मैसेज में खेलते हैं ना। तो इस प्रकार पीपल वेस्ट देयर वैल्यूएबल टाइम विदाउट प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। ह्यूमन लाइफ इज वेरी रेयर। एक एक क्षण, आयुरोपी क्षणोपी, आप एक क्षण भी, चाणक्य पंडित कहते हैं, कोटि स्वर्ण मुद्रा से आप वापस नहीं ला सकते। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है और मनुष्य जीवन में आप भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसको भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन बाकी जीवन के जैसा ही क्या है? दुर्लभम मनुष्यम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थोदम। फिर भी बाकी जनियों के जैसे ही, बाकी शरीर के जैसा ही, और ध्रुवम टेम्पोररी है। Therefore, one moment is important, because if you die, you don't know you will get human life or not. So therefore, one has to be very sincere, not to waste his valuable time and energy in unnecessary mundane talk and gossip. One has to understand the futility of this mundane talk, जो कृष्ण विहीन अनावश्यक कथा, विशेष करके दोस्त लोगों के साथ, कॉलेज में, मेस में, अलग अलग जगह में हम लोग अलग अलग कथा, हम लोग बातें करते रहते हैं। जितना भी जब करके आपने स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट गेन किया, वो सब लीक आउट हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि भक्तों संग के बिना आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि भक्तों संग में हम लोग प्रजल्प नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अभी जो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? भक्तों संग में हम लोग कृष्ण कथा करते हैं, भक्तों संग में हम लोग कृष्ण सेवा करते हैं, भक्तों संग में हम लोग कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं। There's a great difference between chanting Hare Krishna alone and staying in the association of devotees. Great difference. So, Rupa Goswami Pad have given an analogy of a frog. So when frog makes sound, what happens? अभी हमारे वॉइस के बाजू में एक बहुत अच्छा छोटा स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल में नहाने के लिए कुछ फ्रॉग आ गए थे, ठीक है, लाल लाल, पीला पीला, बड़ा बड़ा डब, ऐसे आवाज सब आ गया, एकदम पूरा
मेढक के ग्रुप, और उसका डाक सुन के, आवाज सुन के इतना बड़ा सांप आता है, एकदम प्रैक्टिकल इधर। समझ में आ रहा है? So when frog makes sound, then the Kal Sarpa. So this Prajalpa is compared with the croaking, क्या कहते हैं? Croaking of frog. More we speak mundane talk, more we lose our lifespan. It's a fact. It's a science. More we speak mundane talk, more our lifespan reduces. We loses the valuable time which has been given in this human birth to practice Krishna consciousness and make our life successful. Nowadays, mobile phone is a great obstacle. हम लोग जब करते तब लगते कब टाइम खत्म होगा, कब जब खत्म होगा, और हम लोग जब मोबाइल फोन में घुसते हैं कब टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता है। आदमी कितना टाइम चला गया। So I have to be very careful. This material energy very powerful. Mobile is the product of material energy. और उसको मिसयूज करोगे तो वैसा ही पनिशमेंट मिलेगा। So you have to be very careful not to misuse. You can use it in proper purpose. When you can use it? When you are spiritually advanced. When you are spiritually advanced, spiritually steady, your sadhana is strong. You are doing reading of Prabhupada books, your intelligence is strong. You are associating with the good devotees. You are properly situated in Krishna consciousness, then you can use material energy. Otherwise, material energy will use you, will make you fall. तो इसलिए जब हम लोग भक्ति में आते हैं कुछ दिन के बाद हमें मोटा मोटी फिलोसफी पता चल जाता है, फिलोसफी मोटा मोटी समझ में आ जाता है, फिर भी एक बंदा भक्ति नहीं कर पाता है। तो उसके पीछे मुख्य कारण है कि मुख्य कारण है जनसंघर्ष, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष, association of people, mundane people who are not interested in spiritual life. जनसंघर्ष। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया था, वैष्णव का आचार क्या है, वैष्णव का ड्यूटी क्या है। एक लाइन में आंसर दिया महाप्रभु, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचार क्या है? असत्संग त्याग। असत्संग में प्रजल्प होता है। जितने भी गलत कार्य होता है, असत्संग में हम लोग लड़की के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, असत्संग में हम लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, असत्संग में हम लोग हॉलीवुड का मूवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, उसमें जीवन का सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जब कोई बोलते नहीं क्लास में आओ, अरे उधर जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? दिन भर टाइम वेस्ट किया। अभी क्लास में आएंगे भगवत गीता की क्लास में, जिसमें उनके जीवन सुधर जाएगा। तो इसलिए हमें असत संग से दूर रहना चाहिए। And therefore, voice is giving you the association of devotees, the opportunity to associate with devotees.
staying in the association of devotees. Practice Krishna consciousness along with your studies without wasting your time. You can be successful both materially and spiritually. You should take advantage of this. And one should understand very clearly that I has to practice Krishna consciousness wholly and solely, not partially. There is no concept of partially. जैसे आपके कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, मतलब 5 सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, 3 सब्जेक्ट आप पढ़ाई करोगे, नहीं ठीक है, थोड़ा जितना शक्ति उतना भक्ति। बिहार में लोग ऐसे बोलते हैं, बंगाल में नहीं बोलते। बंगाल मतलब नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है? बंगाल में का कॉन्सेप्ट क्या है? करेंगे तो करें, नहीं करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो 5 मिनट। So what is the solution? So solution is talk about Krishna. कृष्ण के बारे में बात करें, कृष्ण भक्ति का प्रचार करें, दूसरे को कृष्ण भक्ति के बारे में बताएं, भागवत गीता पढ़िए, भागवत को सुनिए, और बहुत सारे वीडियोस है, सुंदर सुंदर वीडियोस हैं, अलग अलग हाँ स्टोरीज है, जिसमें कृष्ण लीला है, चैतन्य महाप्रभु की लीला है, महाभारत की लीला है, उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। भक्तों के साथ में आइए, कैंप्स अटेंड करिए। कैंप्स बहुत एडवेंचरस होता है, बहुत वैरायटी रहता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। और अगर आप जो देखेंगे, जो मोबाइल का आनंद है, वो भी क्या है, वो कहते हैं ना, बी इन द रील और बी इन द रियल बोलते हैं ना, वो भी एक प्रकार के क्या कहते हैं, सपना जैसा है। असली आनंद प्राप्त करना है तो कैंप में, असली आनंद प्राप्त करना है तो कैंप में, जहां पर आप डायरेक्टली भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। भक्तों का संग, बहुत सारे हजारों भक्तों के संग में, सीनियर भक्तों के एसोसिएशन में, भगवान के धाम में डायरेक्ट भगवान का साक्षात्कार करते हैं। भक्ति का प्रोग्रेस जो है, हम लोग क्या कहते हैं, मन गिनित प्रोसेस से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, उसमें भी हो जाता है प्रगति, ये विज्ञान है, आपको प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। भक्तों के संग में जब आते हैं हम लोग, तो हम लोग एक साथ कीर्तन करते हैं, एक साथ हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं, एक साथ धाम जाते हैं, धाम का दर्शन करते हैं, एक साथ प्रसाद पाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं उच्च सीनियर भक्तों से। उसमें जो आनंद होता है, दिव्य आनंद होता है, वो हमारी चेतना को संपूर्ण रूप से आनंदित कर देता है, संपूर्ण रूप से चेतना का विकास होता है। 5 प्रकार की चेतना है, मैंने बोला था ना। पहला है अन्नमय, उसके बाद मनोमय, उसके बाद प्राणमय, उसके बाद विज्ञानमय, उसके बाद आनंदमय। तो आत्मा आनंदमय है, क्योंकि भगवान आनंदमय है और आत्मा भगवान के अंश है। लेकिन अभी हम लोग की स्थिति है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, और अन्न के लिए जी रहे हैं। अन्न प्राप्त हो जाता है, फिर मनोमय, फिर प्राणमय, प्राणमय तो पैसा, फिर पैसा मिल जाता है, फिर मनोमय सेक्स लाइफ। समझ में आ रहा है?
ये तीन ज्यादातर लोग हैं, सब बॉडी के साथ कनेक्टेड है। लेकिन रियल लाइफ शुरू होता है विज्ञानमय, जब आप जानते मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। और उसके बाद जब उस विज्ञान का प्रैक्टिस करते हैं भक्ति योग के द्वारा, तब क्या होता है? आनंदमय। तो इसलिए केवल इंद्रियों भोग के लिए जीवन जीना वो लो क्लास लाइफ। अन्नमय, प्राणमय, मनमय, मतलब जो भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में जो एडवांस है, जो भक्ति कर रहे हो विज्ञानमय, शुरू किया भक्ति, और भक्ति में जो एडवांस किया है वो आनंदमय। समझ में आ रहा है? तो जब आप भक्तों के संग में आप भक्ति करते हैं, विशेष करके जो कैंप होता है, इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होता है कम समय, तो हमें बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति होता है। और उसमें क्या होता है? हम आनंद का अनुभव करते हैं। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि असत संग नहीं करना चाहिए। तो किनका संग करना चाहिए? असत संग का दो कैटेगरी है। एक होता है नॉन डिवोटी, अभक्त, दूसरा स्त्री संगी, जो स्त्रियों का संग करते हैं। पीपल दोज आर वेरी अटैच्ड टू वोमेन, इलिसिएट सेक्स, ऐसे रिलेशनशिप रखते हैं। ऐसा लोगों का संग करेंगे तो क्या होगा? वो स्त्री संग से भी ज्यादा डेंजरस है, शास्त्र में बोला गया है। स्त्री संग से भी ज्यादा डेंजरस है जो स्त्री का संग करते हैं, जो अवैध संबंध रखते हैं। उनका संग करेंगे तो क्या होगा? आपके अंदर भी वो स्वभाव आ जाएगा। तो इसलिए जब हम लोग अलग अलग जगह में रहते हैं, हमें देखना चाहिए कि मेरा दोस्त का, जो हमारे रूममेट्स हैं या मेस में अलग अलग बच्चे लोग रहते हैं, उसका कैरेक्टर क्या है। उससे समझना चाहिए कि इनका संग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसा संग लेंगे वैसा रंग होगा, आपका भी वैसा स्वभाव होगा। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। हम लोग बचपन से लेके इतना कॉलेज में चले गए, कभी भी ये बताया नहीं गया। हम लोग जितना भी पढ़ाई करें वो तो इंफॉर्मेशन के रूप में रहता है, वो भी हमें भौतिक शिक्षा ही दिया गया है, उसमें कोई आध्यात्मिक शिक्षा है ही नहीं, है ना। लेकिन हमारा डेवलपमेंट जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो संघ के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए असत संग त्याग वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असतु कृष्ण अभक्त आद। दो व्यक्ति का संग नहीं लेना चाहिए, एक है कृष्ण अभक्त और एक होता है स्त्री संगी। समझ में आ रहा है? हाँ? तो अभी जब हम लोग इस दुनिया में चलते तो इन लोगों के साथ कम ज्यादा तो क्या कहते हैं, उठा बैठा करना पड़ता है। तो फिर क्या करें? वी शुड हैव फॉर्मल रिलेशनशिप विद देम। जैसे कॉलेज में जाते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे लोग रहते हैं या मेस में रहते हैं। पहला चीज है कि भक्तों को संग रहना चाहिए। उसमें क्या होगा? आप बच जाएंगे। प्रोसेस को फुल्ली प्रैक्टिस करना चाहिए, पार्शियली क्यों, है ना। जैसे कॉलेज का सब्जेक्ट है, आपको पास करना है, सक्सेसफुल होना है, ऑल द सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार भक्ति में भी, भक्ति का अलग अलग एस्पेक्ट है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सम। अरे सम जो है, इसको जड़ के साथ तुलना किया गया। जैसे वृक्ष है तो उसकी माने में इसका जड़ है। जड़ सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पत्ता इंपॉर्टेंट है। साधु संग जो है जड़ है भक्ति का। समझ में आ रहा है? साधु संग में क्या होता है? आपके भक्ति लता को पानी मिलता है। साधु संग में जाके हमारे जो भक्ति लता, वो नरिशमेंट होता है, हम सुनते हैं भगवान के बारे में।
तो क्या बोल रहा था मैं, किन का संग नहीं करना चाहिए, तो स्त्री संगी और कृष्णा भक्त, इन दोनों का संग नहीं करना चाहिए। और किन का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। तो फिर जब हम लोग बाहर की दुनिया में रहते हैं या जाते हैं तो क्या करें, फॉर्मल रिलेशन होना चाहिए। उनको उनके लाइफ में इंटीमेट नहीं होना चाहिए, उनके इंटीमेट लाइफ में प्रवेश नहीं करना चाहिए, या आपको भी उनको भी आपके लाइफ में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इंटीमेट किन के साथ होना चाहिए, भक्त के साथ। अभी प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसे कॉलेज के पास जो ये जो यूथ सेंटर्स है, जहां पर क्या है आपको भक्त का संग मिल रहा है, और उसमें भी क्या है आपके बैकग्राउंड के लोग ही है, इंजीनियर्स हैं, तो आपको इवन स्टडी के हेल्प के लिए भी आपको नॉन डिवोटी का एसोसिएशन करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट डिवोटीज आर ऑल्सो मैटेरियली क्वालिफाइड। समझ में आ रहा है ना? So thus Krishna has given us full opportunity. आप लोग सोचते ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस कंप्लीट, एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऑल फैसिलिटीज आर देयर। तो इसलिए हमें अभक्तों का संग नहीं लेना चाहिए, और बाकी लोग को फॉर्मल रिलेशनशिप रखना चाहिए, और संग लेना चाहिए किनका, भक्तों का। जैसे मैंने बोला स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर में 3 कैटेगरी है, कर्मी, जोगी, ज्ञानी एंड भक्त। तो कर्मी लोग भुक्ति कामना करते हैं, मतलब वो कार्य करते हैं और उसका फल भोगना चाहते हैं। ज्ञानी लोग मुक्ति का कामना करते हैं, लेकिन भक्त जो होते हैं वो केवल भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और ऐसे जो भक्त हैं वो सबसे भगवान के प्रिय होते हैं। जैसे मैंने बोला मुक्ता नाम विशुद्धा नाम, रेडी प्रसाद लगा फटाफट, टाइम हो गया, टाइम बहुत क्रॉस कर गया। तो मुक्ता नाम सिद्धा नाम नारायण परायणो सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। महाप्रभु कहते साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो भक्तों के संग के द्वारा सभी सिद्धियां प्राप्त होता है। महाप्रभु कहते हैं मायावादी संग करले है सर्वनाश। जो मायावादी है, जो बोलते हैं जीव और भगवान एक है, तो कहते हैं मायावादी। और कुछ होते शून्यवादी, तो भगवान निराकार निर्विशेष, तो कहते हैं शून्यवादी या निर्विशेष। जो बुद्धिज्म है तो कहते हैं शून्यवादी, सब कुछ जीरो है, निर्वाण बुद्धिज्म। ये शून्यवादी है, मायावादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी है। चलो प्रभुपाद आए हैं निर्विशेष और शून्यवादी पाश्चात्य देशों ने। तो इनका संग नहीं लेना चाहिए हमें। हम जब मोबाइल फोन में अलग अलग प्रकार के स्पीकर आते हैं, और हम लोग बिना जानकारी लेके हम लोग अलग अलग लोगों से सुनते रहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं हमें परंपरा से सुनना चाहिए और भक्तों से सुनना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये जो मायावादी शून्यवादी, इनका रिप्रेजेंट करते हैं कौन रिप्रेजेंट करते हैं? पूतना।
उतना एक साध्वी के वेश में आई थी, लेकिन उनके स्तन पर जहर था। उसी प्रकार ये जो मायावादी शून्यवादी हैं, साधु के वेश में आते हैं, लेकिन उनके फिलोसफी में विष है। समझ में आ रहा है? इसका उसका सुनेंगे तो जहर कान से घुसेगा और आपके भक्ति लता को मार देगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इधर उधर से नहीं सुनना चाहिए। जैसे इधर उधर का पानी हम नहीं पीते हैं। बहुत सारे ट्यूबवेल में क्या होता है? आर्सेनिक होता है। पानी पिएंगे तो मर जाएंगे। उसी प्रकार इधर उधर से नहीं सुनना चाहिए। पहले जानना चाहिए किनसे सुनूंगा, और शास्त्र में दिया है। चौथे अध्याय पढ़ेंगे तो आपको एवं परंपरा प्राप्त एवं राजस्व विदु, साधु का क्वालिफिकेशन, भक्तों का योग्यता क्या है। तो भगवान को देखना है तो कान से, भगवान को देखना है तो इसलिए जब हम लोग भगवान के बारे में सुनते हैं भक्तों से, शास्त्र से, तब हम लोग भगवान को समझ पा सकते हैं। तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि गमी सकले अशांतो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम नहीं तो बाकी जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, अगर कर्मी है मुक्ति के कामना कर रहे हैं, या ज्ञानी है मुक्ति के कामना कर रहे हैं। तो जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, उसके बारे में कपिल देव भगवान देवावती माता को कह रहे हैं 5 प्रकार के मुक्ति है। सालोत्व शास्त्री सामीप्य सारूप्यम एकात्मन अप्युत दियमानाम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मैं अगर देता भी हो फिर भी नहीं लेता है। सालोक को भगवान के लोक में रहना, सामीप्य भगवान के निकट रहना, सारूप को भगवान के जैसे रूप प्राप्त करना, एकात्मन भगवान के साथ एकाकार हो जाना। तो 5 प्रकार की मुक्ति है। सालोक को शास्त्र सामीप्य सारूपम एकात्मन अप्युत दियोमानाम न, मैं दे भी देता हूं फिर भी नहीं लेता है। अगर बिना मत सेवनम जना, अगर मेरा सेवा नहीं होता है। तो भगवान के भक्त लोग मुक्ति का भी कामना नहीं करते हैं। ज्ञानी लोग मुक्ति का क्यों कामना करते हैं? क्योंकि भौतिक जगत में दुख है, इसलिए हम इधर से जाना चाहते हैं उधर। समझ में आ रहा है ना? कर्मी क्या करते हैं? इस भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं। वो लोग भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन गोल क्या है? स्वर्ग में जाना। गोल क्या है? और पैसा कमाना। उसको कहते हैं कर्मी। उसके नीचे क्या है? जो नास्तिक है, वेद को नहीं मानते हैं। और एक होता है वेद को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? इंद्रियों भोग। उसको कहते हैं कर्मी। उससे ऊपर में क्या है? कुछ लोग जो ज्ञानी है, जिनको पता चल गया भौतिक जगत दुखालय है, जिनको पता चल गया मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, वो कहते हैं मुक्ति का कामना करते हैं। लेकिन मुक्ति का कामना क्यों कर रहे हैं? भौतिक जगत दुखमय है, मेरे को दुख नहीं चाहिए, इसलिए मैं जाना चाहता हूं। लेकिन इधर नेगेटिव चीज है, लेकिन पॉजिटिव चीज नहीं है। पॉजिटिव चीज क्या है? तो मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं। उधर क्यों जाना चाहते हैं? ये दुख मिलना इसलिए जाना चाह रहा हूं। तो यहां पर जो ज्ञानी है, उनके हृदय में भगवान के प्रति सेवा भाव जागृत नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ज्ञानी भी सेल्फ सेंटर है, कर्मी भी सेल्फ सेंटर है, ज्ञानी भी सेल्फ सेंटर है। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त की क्या इच्छा है? कृष्ण की सेवा। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवतार भक्तिर अहैतुकी त्वयि न धनम न जनम न सुंदरी कवितांग व जगदीश कामय। महाप्रभु सिखा रहे हैं, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, जन्म जन्म तक आपके चरण कमलों में सेवा चाहिए। ये भक्तों की भाव है, ये असली भक्त है। इस प्रकार भक्त जो है भक्ति से पूर्ण रहता है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भक्त का तुलना समुद्र के साथ तुलना किया गया है।
समुद्र में बहुत सारे नदियां प्रवेश करता है, फिर भी नदी समुद्र जो है स्थिर होता है। तो खिला दो ना, फटाफट करो ना, जाएगा बाहर। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के भोग के कार्यकलाप होता है। या भक्तों के हृदय में भी बहुत सारे इंद्रियों का क्या कहते हैं, इंद्रियों का वेग आता है, लेकिन भक्त तो क्या होता है, स्थिर होता है। समझ में आ रहा है? भक्त तो क्या स्थिर होता है। तो भक्त की इंद्रिया शुद्ध होते हैं भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा में स्थिर होने के कारण, भगवान के कृष्ण भावना में पूर्ण होने के कारण भक्त लोग अंदर से फुल रहते हैं। दे डोंट फील एम्प्टी, दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड। समझ में आ रहा है? नॉन डिवोटीज और ज्ञानीज, दे आर हैंकरिंग फॉर हैप्पीनेस बिकॉज दे आर नॉट फुल विद इन। बट कृष्ण भक्त कृष्ण के चरणों में समर्पित होने के कारण, कृष्ण के दास ये अनुभव करने के कारण वो भौतिक जगत में सुख ढूंढने की प्रयास नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनका भी शरीर है, उनका भी इंद्रिय है, और जब तक शरीर रहेगा तब तक इंद्रियों का वेग रहेगा। लेकिन भक्त लोग जो है उस इंद्रियों के वेग को स्वेच्छा से, वॉलेंटियरली, एंथुजियास्टिकली उसको ना करते और इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं, इंद्रियों भोग में नहीं लगाते। इस प्रकार भगवान के भक्त लोग सबसे श्रेष्ठ हैं। मुक्ति का कामना भी नहीं करते। भगवान के भक्त लोग भगवान की सेवा केवल चाहते हैं। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोल रहे हैं 4 प्रकार के आनंद है। पहला है भवानंद, इस भौतिक जगत का जो इंद्रिय भोग का आनंद। अभी जो बुद्धिमान है, ज्ञानी, उनको पता है भवानंद नहीं है, ये भवरोग है, तो इसको प्राप्त नहीं करना चाहते, वो मुक्ति प्राप्त करना चाहते, उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। लेकिन ये जो ब्रह्मानंद जो है, ज्ञानी लोग, इसका भी फॉल डाउन होता है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्या है, भगवान निराकार। लेकिन भगवान तो निराकार नहीं है, भगवान साकार, सविशेष, भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम पूर्णमुदच्यते। आपका रूप है, आपका रूप है, आपका पिता का रूप है, आपके पिता का रूप है, टेबल का रूप है, बोतल का रूप है, मोबाइल का रूप है, चश्मा का रूप है, मीटवेयर का रूप है, लैपटॉप का रूप है, चटाई, कौन सा चीज का रूप नहीं है? सब कुछ का रूप है। और जिन्होंने बनाया सब कुछ, उनका रूप नहीं है। ऐसा बोगस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और यही कॉन्सेप्ट बाहर में चल रहा है। बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं, और जो सरल पब्लिक है वो बोला था साधु महात्मा है, लाल कपड़ा पहना हुआ है, उसको देख के लोग उनका सुन लेते हैं। लेकिन उनके पास जो जहर है उसको तो पता नहीं। इसलिए ये जो वृंदावन में अलग अलग असुर आते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं ये अलग अलग अनर्थों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो आपके हृदय में सारे असुर को मारना पड़ेगा। हमारे हृदय में सारे असुर है, समझ में आ रहा है? तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कोई सेंटिमेंट नहीं है, इट्स साइंस, एंड यू हैव टू बी एजुकेटेड, स्पिरिचुअली एजुकेटेड। बहुत बार लोग सोचते हैं, हम लोग भी सोचते थे पहले, ये भक्त लोग जो मूर्ख व्यक्ति हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं जानते, वो सब ये करते हैं। लेकिन भक्ति इज वेरी वेरी हायर साइंस। तो यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ब्रह्मानंद जो निराकार सोचते हैं ज्ञानी, क्योंकि तो भगवान निराकार नहीं, तो निराकार में क्या होता है, आनंद नहीं मिलता है। निराकार में कोई एक्सचेंज नहीं होता है ना, उधर जाके बोरिंग फील करते हैं, फिर उनका इस भौतिक जगत में पतन हो जाता है। फिर आके क्या कहते हैं, समाज सेवा करते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं, गरीब दुखियों को खिलाना, हॉस्पिटल खोलना। वो बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या,
ये मायावादी का कॉन्सेप्ट है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो इसलिए ब्रह्म में विलीन हो जाता है, बोले जगत मिथ्या 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 मिथ्या। लेकिन गीता में भगवान ने एक नहीं कहा है मिथ्या, गीता में भगवान ने कहा है अनित्य है। समझ में आ रहा है? टेम्पोररी है। जैसे सपना, सपना मिथ्या नहीं है, लेकिन सपना सपना है, सत्य नहीं है, लेकिन सपना तो सपना है। उसी प्रकार भौतिक जगत सही है, हम लोग दुख भोग रहे हैं, सही है, ये मिथ्या नहीं है। हम जो दुख भोग रहे हैं, मिथ्या क्या है? कृष्ण को भूल गए हैं। समझ में आ रहा है? तो ज्ञानी लोग सोचते कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी सत्य है, लेकिन जगत क्या है? जेल खाना है। जगत क्या है? रिफ्लेक्शन है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। असली जगत आध्यात्मिक जगत में है, असली जीवन कृष्ण के साथ है। इस प्रकार जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहते हैं, वो मिथ्या जगत में वापस आता है और फिर मिथ्या जगत में सेवा करते। कृष्ण का सेवा नहीं करते, तो तुम भगवान है, हम भगवान है, सब लोग भगवान है और सबका सेवा करते। ऐसे बहुत सारे सोसाइटी हैं जो कृष्ण की सेवा नहीं सिखाते हैं, वो बोलते सबकी सेवा करो, जीव सेवा शिव सेवा। समझ में आ रहा है? सभी जीव शिव है, अभी उनका पतन हो गया है। कैसा शिव का पतन हो सकता है? नारायण का पतन हो सकता है? बोले दरिद्र नारायण सेवा। अरे नारायण कब दरिद्र हो गया? वो बात कहते हैं। अरे नारायण लक्ष्मीपति है, वो कब दरिद्र हो गया? बोले सब नारायण है। तो मायावादी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट है, दंडो मात्रेनो नरो नारायणो भवेत। दंडो सन्यासी होने से ही नारायण हो जाता है। जब महाप्रभु क्या कहते प्रचार कर रहे थे, तो उधर प्रकाशानंद सरस्वती था, मायावादी का ग्रुप था, और उनको नारायण बोल के सम्मान कर रहे थे। बोले आओ इधर बैठो हम लोग के साथ। लेकिन महाप्रभु एक दूर में कोने में, इधर लोग पैर धोते, उधर बैठे हुए थे। बहुत द्वैन भाव कर रहे थे, द्वैन भाव। तो उनको बुलाया, बोले नहीं हम क्वालिफाइड नहीं है आप लोगों के साथ बैठने का, आप लोग बहुत महान व्यक्ति हैं। तो जब महाप्रभु का द्वैन भाव से उन लोगों की हृदय परिवर्तन हो गया, और जब परिवर्तन हुआ तब महाप्रभु उनको कृपा किया, और उनके कृपा से महाप्रभु जो असली में नारायण है, उनको समझ में आया। आप ऐसे बोल रहे, आपको देख के लग रहे साक्षात नारायण। तब महाप्रभु उनको उनका जो फिलोसॉफिकल जो मिस्टेक है उनको समझाया, और फिर जो प्रकाशानंद सरस्वती और उनके हजारों शिष्य थे, सब लोग कृष्ण भक्त बने। समझ में आ रहा है? तो पहला है भवानंद, उसके ऊपर है ब्रह्मानंद, उसके ऊपर है प्रेमानंद। ठीक है, जो कृष्ण प्रेम का आनंद। जब हम लोग समझ सकते हैं हम कृष्ण का दास है, तो ब्रह्मानंद जो है, जो ज्ञानी लोग मुक्ति कामना करते हैं, भक्त लोग जो तथाकथित मुक्ति है, जो भगवान में एकाकार हो जाना, वो नहीं चाहते, क्योंकि वो गलत है कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार सविशेष। जैसे पिता है और उनके पुत्र है, उसी प्रकार भगवान गीता में कहते हैं ना, अहम बीजो पिता मामोई मांसो जीवलोके, जीवात्मा भगवान के अंश हैं। भगवान हमारे प्रभु हैं, हम लोग भगवान के दास हैं। तो इस प्रकार भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है, भगवान की भक्ति करना हमारा धर्म है। तो इसलिए भक्ति करने के द्वारा, भगवान की सेवा करने के द्वारा उसमें आनंद होता है, उसको कहते हैं प्रेमानंद। उसके ऊपर है सेवानंद, प्रेमानंद के ऊपर है सेवानंद। तो एक बार गोपियां कृष्ण को सेवा कर रहे थे, और जब सेवा कर रहे थे तो सेवा करते उनके हृदय में बहुत प्रेम जागृत हो गए। अलग अलग प्रकार के जो रोमांच, कंप, वस्तु, पुलाव,
और उसके कारण क्या, और सेवा नहीं कर पा रहे थे। उसके कारण क्या हुआ, सेवा में विघ्न हो रहा था। तब गोपियां प्रेमानंद को कहा कि तुम अभी रुक जाओ, अभी हम भगवान का, हमारे प्रभु का सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए सेवा जो होता है सबसे ज्यादा निस्वार्थ होता है। भगवान की जो सेवा है वो सबसे ज्यादा निस्वार्थ होता है। तो कोई अगर प्रेम करता है लेकिन सेवा नहीं करता है, जैसे नया नया शादी हुआ, पति ऑफिस में गया, तो पूरा दिन काम किया और पत्नी दिन भर पति का बारे में सोच रहे हैं, उनके याद कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, कैसे हैं आप, इतने दूर चले गए हमसे, आपके बिना मेरे रहा नहीं जा रहे, कब आएंगे, हम अपेक्षा कर रहे हैं, आपका अपेक्षा कर रहे हैं, जल्दी आइए, इतना दूर मत जाइए, हाँ मैं आपके बिना नहीं रह पा, मेरा चैन ना आए, नींद ना आए। तो थोड़ा अपेक्षा करो, आ ही रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं, 7 बजेगा तो मैं निकल जाऊंगा ऑफिस से, सबके पहला शटल लेके मैं पहुंच जाऊंगा आपके पास, चिंता मत करो। आ गया पति, आ गया, हाथ मुंह धो के बोले कहाँ है मेरा डिनर दो मेरे को, भूख लगा है बहुत। डिनर, अरे बोले डिनर के बारे में तो पता नहीं मेरे को। मैं तो आपके याद में इतना खोया हुआ था कि मैं सब, क्या ये प्रेम है? क्या ये प्रेम है? प्रेम मतलब सेवा, भक्ति मतलब समझ में आ रहा है? तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ होता है सेवानंद। भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है? प्रभु और दास। दास का कर्तव्य क्या है? प्रभु का सेवा। तो नाम जप एक प्रकार की सेवा है, और कली युग में विशेष करके मुख्य सेवा है। नाम जप के द्वारा हम लोग भगवान के साथ हमारा संबंध को जोड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग पूरे दिन नाम जप नहीं कर सकते हैं, हम लोग हरिदास ठाकुर के स्तर में नहीं हैं, तो इसलिए हमें अलग अलग प्रकार की सेवा करना चाहिए। भगवान की मंदिर साफ करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान की आरती करना चाहिए, भगवान के लिए रसोई करना चाहिए। और भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किनका सेवा करेंगे? इंद्रियों का सेवा करेंगे। तो इसलिए हमें ऐसे संग में रहना चाहिए जहां पर हम लोग भगवान की सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिले, और हमें इस सेवा का सौभाग्य लेना चाहिए। तो इस प्रकार जो भगवान के जो भक्त होते हैं, कर्मी, ज्ञानी और भक्त, वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इतना किताबों लिखा है, बहुत सारे कथाकार हैं, वो पहले रासलीला बोल के लोगों का अटेंशन प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। रासलीला या कथा बोल के लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने वैसा नहीं किया। प्रभुपाद जी ने अपने नींद को सैक्रिफाइस किया। अपना जो नींद है, रात का नींद जो सबसे प्यारा होता है हम लोगों को, वो छोड़कर उन्होंने क्या किया? किताब लिखा। उन्होंने वो सहजिया लोगों के जैसा वो रासलीला के ऊपर प्रवचन नहीं देकर, कौन रासलीला सुनने के लिए क्वालिफाइड है आज के जमाने में? पहले गीता भागवत पढ़ो, पहले समझो हम शरीर नहीं आत्मा है कि नहीं? पहले अर्जुन के जैसा भक्त बनो, फिर गोपियों के जैसा भक्त बनोगे। अरे अर्जुन के जैसा भक्त नहीं बना, गोपी बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए नकल नहीं करना चाहिए। आचार्य लोग जिस प्रकार हमें उपदेश दिया है, आचार्य लोग जिस प्रकार हमें मार्गदर्शन किया है, उस प्रकार हमें चलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी
स्टेप बाय स्टेप सारा फिलोसॉफी दिया है, तत्व समझाया है। प्रभुपाद जी हमें सिखाया किस प्रकार हर चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। माया के हर प्रोडक्ट को, हम लोग तो इस दुनिया में, इस भौतिक जगत का जो प्रगति में बहुत गर्वित है, लेकिन प्रभुपाद जी ने सिखाया है कैसे भगवान की जो शक्ति है उससे और श्रेष्ठ है, और किस प्रकार हर चीज को भगवान की सेवा में लगाया। तो राहुल कहाँ गया? ऑफरिंग नहीं हुआ क्या? इतना समय क्यों लगता है? तो इस प्रकार हम सभी भक्तों को सही तरीके से भक्ति करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम सभी भक्तों को सही तरीके से भक्ति करना चाहिए। भक्ति का जो सिद्धांत है वो हमें समझना चाहिए। भक्ति का प्रोसेस है हमें पूरी तरीके से समझना चाहिए, पार्शियली हमें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। और भक्ति का जो सिद्धांत है, अंग है, उसको अच्छे तरीके से समझना चाहिए, फिलोसॉफी अच्छे तरीके से समझना चाहिए, और यथारूप हमें उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तब आपको इसका पूरा फल प्राप्त होगा। आपने देखा बहुत बार फूल फूटता है और उसमें कीड़ा लगा हुआ है। फूल उगा है लेकिन उसके एक कोने में या फूल की किसी एक पार्ट में थोड़ा क्या कहते हैं, मोरा हुआ है या कीड़ा लग गया है। फटाफट करो, निकालो लेके आओ। तो उसी प्रकार भक्ति एक फूल के जैसा है, लेकिन उसको पार्शियली प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा? पूरा मैच्योर होना पड़ेगा ना। हृदय में तो हम लोग अनर्थ हैं, उसको पूरा नष्ट कर सकता है भक्ति योग के द्वारा। तो इसलिए मेरा निवेदन है, आप लोग का एग्जाम आ रहा है तो आप लोग बहुत कॉन्शियस रहिए, ठीक है? कैसे हमें सुबह हमारा माला कंप्लीट हो जाएगा, तो बाकी समय हम पढ़ाई करें। अगर हम लोग हमारे कृष्ण के साथ हमारा संबंध, उसके बारे में हम लोग सचेतन नहीं है, तो क्या होगा? सुबह हम जप नहीं करेंगे, हम लोग केयरफुल नहीं रहेंगे, नहीं मैं सुबह जब नहीं करूंगा तो फिर एग्जाम स्टडी प्रेशर रहेगा। इसलिए हमें बहुत सिंसियर होना चाहिए कि रात में टाइम पे सो जाएंगे। मैं देख रहा था हमारे डिवोटी, वो रात में पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, 3 बजे तक पढ़ाई किया, और मैं देखा पूरा दिन सोया हुआ है। जितना समय सोना चाहिए उनको, रात को सोएंगे तो 6 घंटा में हो जाएगा, या थोड़ा 5 घंटा में भी सो सकते हो, ठीक है। लेकिन रात को नहीं सोएंगे तो सुबह आपको 8 घंटा 10 घंटा लगेगा, फिर भी आपका रेस्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो टाइम बचा है ना, टाइम वेस्ट किया, और जॉब भी नहीं कर पाया वो। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी लोगों को, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, अभी तो आप ज्यादा क्लासेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जॉब मिस मत करिए। और वीक में एक एटलीस्ट, मैंने हमारे बच्चे लोगों को भी हम लोग स्टैंडर्ड दिया है, सुबह एटलीस्ट जॉब करने के लिए आ जाइए, और वीक में एक क्लास अटेंड करिए। जिस दिन छुट्टी है आपका या एग्जाम के बीच में गैप है, तो उसमें क्या होगा, आपका कृष्ण कॉन्शियसनेस मेंटेन होगा। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार ड्यूरिंग द एग्जाम we should know how to execute our spiritual duties, and as soon as the exam finish then we should attend some camp, और हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस को नरिश करना। जो फर्स्ट ईयर है उनके लिए हमें उत्कर्ष फेस्टिवल है, और जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है, सेकेंड ईयर जो उत्कर्ष नहीं अटेंड किया है वो अटेंड कर सकता है उत्कर्ष। आपका एग्जाम कब खत्म होना है? 25। तो जो लोग इनका एग्जाम बाद में खत्म हो रहा है, उनके लिए हम लोग 1-2 दिन का कुछ प्रोग्राम रख रहे हैं। तो उसका डेट हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं।